جو وردہ ملک کے ساتھ ریحان طارق نے پوڈ کاسٹ کی ہے اس میں جو سوالات کیے جا رہے ہیں یا اس طرح کی جو کنٹروورسیز کریٹ کی جا رہی ہیں، کیا یہ ٹھیک ہیں یا اس کا امپیکٹ جو ہے وہ پاکستانی معاشرے پہ کیسا پڑے؟ مجھے یہ بتائیں کہ جب بھی کوئی ٹک ٹاکر ہے یا کوئی بھی انفلوئنسر ہے، جب وہ وائرل ہو جاتا ہے، وہ کوئی ایک چھوٹا سا کوئی بھی سٹیپ کرتا ہے تو لوگ اس کے اوپر جو نا ایسے باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جیسے وہ ان کی کوئی پبلک پراپرٹی ہو۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ لیکن بات یہ کہ ناچ گانا نہیں ہونا چاہیے، باقی عوام کو، آڈینس کو کرٹیسائز کرنے کا ان کا حق ہے۔ جو لوگ بھی ویڈیوز دیکھتے ہیں ان کا حق ہے کرٹیسائز کرنا کریں۔ یہی وردہ ملک ایک بار جو ہے دوپٹے کے ساتھ ویڈیو بنانا شروع کر دیا تھا، تو لوگ اس کو کہتے تھے حضرت مولانا وردہ ملک صاحب۔ ایسے ہی اب مجھے یہ بتائیں کہ لوگ نہ اس طریقے سے دیکھنا چاہتے ہیں، لوگ نہ اس طریقے سے دیکھنا چاہتے ہیں، لوگ چاہتے کیا ہے؟ دیکھیں، جب آپ سوشل میڈیا پہ آتے ہو تو آپ نے مائنڈ میں یہ رکھنا ہے کہ آپ کے اوپر کرٹیسزم آئے گا، لوگ آپ کو اچھا بھی بولیں گے، لوگ آپ کو برا بھی بولیں گے۔ ہمارے یہاں پہ نا جب کوئی نعت کی ویڈیو لگاتا ہے نا، اس کے نیچے بھی لوگ آ کے نا برے کامنٹس کرتے ہیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر جب اچھی بات کرو گے، خاص طور پہ پاکستان کے اندر، سب کانٹیننٹ کے اندر، تو آپ کو وہاں پہ اچھا کنٹینٹ پیش کرنے پہ آپ کو سراہا نہیں جائے گا، آپ کا برا کنٹینٹ دیکھا جاتا ہے۔ یہ آپ بیٹھے ہو نا یہاں پہ، آٹو ڈانس لگانے لگ جو ساری دنیا دیکھے گی، آپ کو ملے والے بھی دیکھیں جی شعیب صاحب ناچ رہے تھے، ایک بات ہے کہ نہیں ہے؟ تو لوگ دیکھتے ہیں تو لوگ بناتے ہیں، دیکھنا چھوڑ دے، بنانا چھوڑ دے۔ کیا یہی وردہ ملک اگر 10 سے 15 فیملیز کو سپورٹ کر رہی ہے، وہ انہوں نے پوڈ کاسٹ کے اندر یہ چیز کہی ہے، باقی اللہ بہتر جانتا ہے کہ 10 سے 15 فیملیز کو میں ہر مہینے سپورٹ کرتی ہوں، ٹھیک ہے؟ اگر میں 20 سے 25 ہزار والی نوکری کرتی، کیا میں یہ سب کچھ کر سکتی؟ نہیں، 20 سے 25 ہزار میں تو اپنا گھر بھی نہیں چلا سکتی تھی، لیکن اس طرح بھی تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ خود کو ننگا کر دو۔ ایک لڑکی بولے جی میں پروسٹیٹیوشن کر رہی ہوں، میں اس سے جی گھر چلا رہی ہوں۔ اسلام کے اندر صدقہ، زکوٰۃ، خیرات حلال پیسے سے ہوتی ہے، حرام پیسے سے ہوگا کہ پاکستانی لڑکی جس کا نام عائشہ پاکستانی تھا، وہ ٹک ٹاکر تھیں، وہ جن کے اوپر ڈاکٹر عفان کیسر نے بھی بات کی تھی، آپ کو یاد ہوگا کہ وہ شروع میں اس کی ماں آ کے کہتی تھی کہ دیکھو یہ کہ ہمارے اوپر کرٹیسزم کر رہے ہیں لوگ، ہمارے اوپر باتیں کر رہے ہیں، اور عفان کیسر کو بھی اس نے رونڈ ڈالا تھا۔ میں نے اس کی ایک ویڈیو دیکھی جس میں اس لڑکی نے ایک ٹی شرٹ پہنی ہوئی ہے، نیچے ایک شارٹ پہنا ہوا ہے، اس کے بعد وہ دبئی میں ایک بیچ پہ جو ہے وہ نہا رہی ہے۔ سمیہ جا آپ کو دیکھ لو، جا کے باہر بیٹھ گئے، باقی سارے ختم، سر باپ کو تو گھر سے نکال دیا نا، باپ گیا، ماں بھی ناراض ہو گئی، وہ گندی گندی باتیں کر رہی ہیں نا، میرے کپڑے دیکھو، فلانا دیکھو، ڈیلیوری، ایگز، پمپ، بہت سی بائک دیکھ لیں۔ پیسہ آنے کے بعد انہوں نے کہا جی اتارو کپڑے بھائی، ہمیں پیسہ چاہیے، چھوڑو مرنے کی بات کی زندگی، یہ زندگی تو جیے۔ 20-22 سال 25 سال انہوں نے غریبی میں گزارے، اب پیسہ آ گیا تو یہ کہہ رہی ہم اپنی لائف کو اپنے حساب سے جئیں گے، اینڈ پہ کیا ہوگا، یہ پھر ذلیل ہوگی۔ اصغر کو دیکھ لیں، کیا نام میرا اصغر ہے نا، میں ایک اور بھی ہماری ایک بہت بڑی سیلیبریٹی ہے پاکستان کی، آپ کو پتا ہے بحریہ ٹاؤن کے اندر وہ اپارٹمنٹ میں رہتی تھی، ان کے بچے باہر تھے، جب وہ فوت ہوئی ہیں ان کے پاس ان کے بچوں کو بھی نہیں پتا تھا۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام شعیب صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں پوسٹ پاکستان ڈیجیٹل طوائف۔ وردہ ملک کو ایک پوڈ کاسٹ کے اندر یہ ایک لڑکے نے سوال کیا کہ جناب آپ کو ڈیجیٹل طوائف کیوں کہتے ہیں؟ اس کے بعد وردہ ملک وہاں پر بھڑک اٹھی اور وہاں پر آپس میں کچھ تھوڑی بہت منہ ماری بھی ہوئی۔ اسی ٹاپک پہ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ کیا جو وردہ ملک کے ساتھ ریحان طارق نے پوڈ کاسٹ کی ہے اس میں جو سوالات کیے جا رہے ہیں یا اس طرح کی جو کنٹروورسیز کریٹ کی جا رہی ہیں، کیا یہ ٹھیک ہیں یا اس کا امپیکٹ جو ہے وہ پاکستانی معاشرے پہ کیسا پڑے گا؟ میرے ساتھ موجود ہیں عثمان زیب صاحب، کیا کہیں گے؟ میں تو سب سے پہلے یہ کہوں گا کہ اس کلپ کو کٹ ہونا چاہیے تھا۔ اچھا دیکھیں، آپ نے نا کسی بندے پہ بھی اگر کرٹیسائز کرنا ہے اس کو تو ان اے پازیٹیو وے کریں، کسی کو نیگیٹو وے میں نہ کریں۔ ہم نے پرانے دوروں میں بھی دیکھے، ہمارے انبیاء نے بھی جو طوائف ہوتی تھی انہیں بھی کبھی طوائف نہیں بولا، ہمیشہ ان کی اصلاح کی ہے، انہیں بہن بولا ہے، انہیں بیٹی بولا ہے۔ تو یہاں پہ اگر اس قسم کا پہلے تو کوشچن ہونا نہیں چاہیے تھا۔ چلیں، جو پوڈ کاسٹر صاحب ہیں انہوں نے خود نہیں کیا، انہیں کی جو آڈینس تھی انہوں نے کیا، تو ان کو چاہیے تھا کہ اس چیز کو کٹ ہی کر دیتے، یہیں سے ہی کٹ کر کے بھی تو چلایا جا سکتا تھا، لیکن کیا ریٹنگ لینی تھی۔ پھر اس کے بعد جہاں پہ ان کو طوائف بولا گیا، میرا خیال ہے کہ بڑا غلط بولا گیا۔ پہلے تو وہ طوائف نہیں ہے، وہ ایک شادی پہ ناچی تھی، کسی سے پیسے لے کے نہیں ناچی تھی۔ شادی پہ بھی اس طرح نہیں ناچنا چاہیے، یہ بات بھی بالکل ٹھیک ہے، لیکن اگر اصلاح کرنی ہے تو اس کو بہن بول کے بھی اصلاح کیا جا سکتا تھا کہ بہن آپ شادیوں پہ کیوں ناچتی ہو، آپ شادیوں پہ نہ ناچیں۔ تو یہ کوشچن پازیٹیو وے میں ہو سکتا تھا۔
मुझे ये बताएं कि जब भी कोई टिकटॉकर है या कोई भी इन्फ्लुएंसर है, जब वो वायरल हो जाता है, वो कोई एक छोटा सा कोई भी स्टेप करता है, तो लोग उसके ऊपर जो ना ऐसे बातें करना शुरू कर देते हैं कि जैसे वो उनकी कोई पब्लिक प्रॉपर्टी हो। ये क्यों होता है ऐसा? देखें, लोग तो खैर ठीक करते हैं, क्रिटिसाइज इसलिए करते हैं कि ये नाच गाना डांस ठुमका ये हमारे मजहब में नहीं है। दूसरा, हम लोग बैठे हैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में, हम लोग यहाँ पे अमेरिका, यूएसए, कनाडा, यूरोप में नहीं बैठे। अब होता क्या है कि जब ये नाच गाना चल रहा होता है ना, तो सबसे पहले उनके घर वालों को भी ख्याल करना चाहिए कि हमारी बच्ची या बच्चा नाच रहा है तो हम भी इसको देखें। फिर उसके बाद किसी को कुछ नहीं कहा जाता, जब वो वायरल होता है ना तब उसकी टांग खींची जाती है। जिस दिन वो वीडियोस बना रहा था उस टाइम उस पर क्रिटिसाइज करते हैं। उस टाइम हमारे यहाँ पे ना चढ़ता जो सूरज है ना, सारे उसके पुजारी हैं भाई। जो सूरज चढ़ गया उसके पीछे सारे लग जाते हैं। लेकिन बात यह कि नाच गाना नहीं होना चाहिए। बाकी अवाम को, ऑडियंस को क्रिटिसाइज करने का इनका हक है। जो लोग भी वीडियोस देखते हैं उनका हक है क्रिटिसाइज करना करें। यही वर्दा मलिक एक बार जो है दुपट्टे के साथ वीडियो बनाना शुरू कर दिया था इसने। तो लोग इसको कहते थे हजरत मौलाना वर्दा मलिक से। ऐसे ही। अब मुझे ये बताएं कि लोग ना इस तरीके से देखना चाहते हैं, लोग ना इस तरीके से देखना चाहते हैं, लोग चाहते क्या है? देखें, जब आप सोशल मीडिया पे आते हो तो आपने माइंड में ये रखना है कि आपके ऊपर क्रिटिसिज्म आएगा। लोग आपको अच्छा भी बोलेंगे, लोग आपको बुरा भी बोलेंगे। हमारे यहाँ पे ना जब कोई नात की वीडियो लगाता है ना, उसके नीचे भी लोग आके ना बुरे कमेंट्स करते हैं। ऐसा ही है। तो हर किस्म का बंदा है सर, मार्केट है बहुत बड़ी, पूरी दुनिया से लोग आपको देख रहे होते हैं। जिसके पास जिसकी मर्जी है, उसके पास उसका कीपैड है, वो अच्छा भी लिख सकता है, वो बुरा भी लिख सकता है। बात यह है कि आपने अच्छा कंटेंट बनाना है। लेकिन मुझे ये बताएं कि अच्छा कंटेंट देखता कौन है? आप वीडियोस ये बना रहे हो किसके लिए? कि लोग देखें, आपको भी व्यूज। हर बंदा जो वीडियो बनाता है उसको व्यूज चाहिए। हमारे माशरे के अंदर जब अच्छी बात करोगे, खासतौर पे पाकिस्तान के अंदर, सब कॉन्टिनेंट के अंदर, तो आपको वहां पे अच्छा कंटेंट पेश करने पे आपको सराहा नहीं जाएगा, आपका बुरा कंटेंट देखा जाता है। ये आप बैठे हो ना यहाँ पे, ऑटो डांस लगाने लग जो सारी दुनिया देखेगी, आपको मल्ले वाले भी देखेंगे, शुएब साहब नाच रहे थे। एक बात है कि नहीं है? तो लोग देखते हैं तो लोग बनाते हैं, देखना छोड़ दे, बनाना छोड़ देंगे लोग। अच्छा, ये एक मुझे बात बताएं, क्या यही वर्दा मलिक अगर 10 से 15 फैमिलीज को सपोर्ट कर रही है, वो उन्होंने पॉडकास्ट के अंदर ये चीज कही है, बाकी अल्लाह बेहतर जानता है कि 10 से 15 फैमिलीज को मैं हर महीने सपोर्ट करती हूँ, ठीक है, अगर मैं 20 से 25 हज़ार वाली नौकरी करती, क्या मैं ये सब कुछ कर सकती? नहीं, 20 से 25 हज़ार में तो अपना घर भी नहीं चला सकती थी। लेकिन इस तरह भी तो नहीं हो सकता ना कि आप खुद को नंगा कर दो। एक लड़की बोले जी मैं प्रोस्टिट्यूशन कर रही हूँ, मैं उससे जी घर चला रही हूँ। इस्लाम के अंदर सदका, ज़कात, खैरात हलाल पैसे से होती है, हराम पैसे से नहीं होती। इसलिए एक बंदा जुआ से पैसा कमाए और बोले जी मैं लोगों को सपोर्ट करता हूँ, ये तो बेतुकी रीजन है। आप अपना हलाल करो, कम हो ज्यादा हो, अपने एक्सपेंसेस कम कर लो ना। ये तो नहीं है कि आपने एक्सपेंसेस अच्छे रखने हैं। 25,000 आपकी सैलरी है, आपने 50,000 वाले पॉलर में जाना है, 25,000 पे भी तो वो गुजारा कर रही थी ना। ये तो नहीं है कि पैसे की खातिर आप खुद को नंगा कर दो। आपको याद होगा कि पाकिस्तानी लड़की जिसका नाम आयशा पाकिस्तानी था, वो टिकटॉकर थी, वो जिनके ऊपर डॉक्टर अफान कैसर ने भी बात की थी, आपको याद होगा कि वो शुरू में उसकी माँ आके कहती थी कि देखो ये कि हमारे ऊपर क्रिटिसिज्म कर रहे हैं लोग, हमारे ऊपर बातें कर रहे हैं, और अफान कैसर को भी उसने रोन डाला था। मैंने उसकी एक वीडियो देखी जिसमें उस लड़की ने एक टी शर्ट पहनी हुई है, नीचे एक शॉर्ट पहना हुआ है, उसके बाद वो दुबई में एक बीच पे जो है वो नहा रही है। मुझे ये बताएं कि उस घर से एक कच्चे घर से सफर शुरू हुआ और वहां तक पहुंच गई, ठीक है, जहां पर कोई अब उसको लिबास की कोई टेंशन नहीं है। क्या पाकिस्तानी लड़कियां जब फेम में आ जाती हैं ये सब कुछ उन्होंने अडॉप्ट करना शुरू कर दिया? पाकिस्तानी लड़कियां नहीं, ये तो पूरी दुनिया में होता है। अच्छा। और हर कंट्री में होता है, हर कॉन्टिनेंट में होता है, और हर मजहब की लड़कियां अब ऐसा कर रही हैं। ये नहीं कि इस्लाम की कर रही हैं, आप पूरी दुनिया में देख लें, जिसके पास भी पैसा आ गया। मसला क्या है, मसले को समझें। दो चीज़ें होती हैं हमारे यहाँ पे। एक लोअर मिडिल क्लास है, ये वो लोअर मिडिल क्लास है कि जब ये पैदा हुई है ना घर में, इन्होंने अपने आप को तरसते देखा है, इन्हें खाना भी मिल जाता था, गनीमत होती थी। ये वो लोग हैं जो घर में सब्जियां खाते थे, एक टाइम का खाना नहीं खाते थे, तरसते थे हर चीज़ को। फिर वक्त ने ना पलटा खाया, पलटा खाते खाते जो लोग इज्जतदार लोग थे वो आस्ता आस्ता पीछे होने शुरू हो गए, क्योंकि ये जो सोशल मीडिया या सारी चीजें आ गई। अब क्या हुआ, जब इनको पैसा मिला, इन्होंने कहा जी दफा करो, ये क्या जिंदगी हम जी रहे हैं, समिया जहाँ को देख लो, जाके बाहर बैठ गए, बाकी सारे खत्म। सर बाप को तो घर से निकाल दिया ना, बाप गया, माँ भी नाराज हो गई, वो गंदी गंदी बातें कर रही है ना, मेरे कपड़े देखो, फलाना देखो, डिलीवरी, एग्स, पम्प, बहुत सी बातें कर रही है। कहने का मकसद है गरीब घरों की ये लड़कियां थी। उसके बाद इनके पास पैसा आया, मनाल मलिक देख लें, पैसा आने के बाद इन्होंने कहा जी उतारो कपड़े भाई, हमें पैसा चाहिए, छोड़ो मरने की बात की जिंदगी, ये जिंदगी तो जिए।
20-22 साल 25 साल इन्होंने गरीबी में गुजारे, अब पैसा आ गया तो ये कह रही हम अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जिएंगे, एंड पे क्या होगा, ये फिर जलील होंगी जब बुढ़ापा आएगा। एंड पे जलील होंगी, जलालत है, साफ ज़ाहिर है ये जो काम कर रही है। अच्छा, मैं आपसे आखिरी सवाल ये करना चाह रहा था कि वर्दा मलिक ने कहा कि मैं जो मर्जी करूं, जैसे मर्जी करूं, मैं पैसा कमाऊं, मैंने अपनी ज़िंदगी बनानी है, मुझे इस चीज़ की कोई टेंशन नहीं है, तुम लोग जैसे मर्जी कहते रहो। मुझे एक बात बताएं कि ये जो टिकटॉक लाइव का जो पैसा है, इसमें क्या ऐसी चीज़ है कि बंदे को ये समझ नहीं आ रहा था कि यार मैं इस्लाम को फॉलो कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, बट ठीक है जी पैसा आ रहा है, जो मर्जी करें, मेरी प्रोफाइल ऊपर हो। सर बात पता है क्या, सारी रात लाइव बैठते हैं, बीच में नमाज का टाइम भी गुजर जाता है। देखें हमारे यहाँ पे पहले क्या होता था, बच्चे को एक सबक पढ़ाया जाता था, आपने ऐसे जिंदगी जीनी है। जो भी टिकटॉक लाइव के ऊपर इस टाइम पे हैं, वो अपने घरों में इतना पैसा कमा रहे हैं, अपनी लाइफ में इतना इंडिपेंडेंट हो गए कि उनको पूछने वाला कोई नहीं है। वो बोलते हैं हम जो कर रहे हैं हमारी मर्जी, हम ठीक है, पूछने वाला कोई नहीं है उनको, कुछ कहने वाला कोई नहीं है उनको। गालम गलोच भी चल रही है, फांसी भी चल रही है, डांस भी चल रहा है। मेन चीज क्या है पाकिस्तान के अंदर, खास तौर पे पैसा। जिसके पास पैसा है वो कामयाब है, पावे आराम का है, जिसके पास पैसा नहीं है वो नाकाम है। घर के अंदर दो बेटे हैं, अगर आप ज्यादा पैसा कमा रहे हो ना, पावे आराम कमा रहे हो, आपका बाप बोलेगा ये मेरा कामयाब बेटा है। दूसरी साइड पे बेचारा 5 वक्त का नमाजी है, जिसके हलाल कमा रहे, कम कमा रहे, कहेंगे जी नाकाम बंदा है। तो आप खुद देख लें, वर्दा मलिक अब यही सीन बोल रही है ना जी, मेरा जिसम मेरी मर्जी वाली लड़कियां, तो वर्दा मलिक तो फिर चले बाहर भी चली जाए। यहाँ पे कैपिटल के अंदर मेरा जिसम मेरी मर्जी के बैनर लगे हुए, ऐसा ही है। ये जो बोल रही है ना जी मैं मर्जी में जो कुछ करूं, बिल्कुल गलत बोल रही है जी। हम लोग सबसे पहले मुसलमान हैं, फिर उसके बाद हम लोग पाकिस्तानी हैं। ना इस्लाम का अंदर ये चीज़ है और ना हमारे पाकिस्तान के अंदर ये कल्चर है। ये दोनों चीज़ों को तोड़, ये ज़बरदस्ती वाली बात है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी वाली बात है। इसकी मर्जी ये करे, कल को जब मरेगी तो फिर लोग भी यही कहेंगे जी हम इसको दफनाए ना दफनाए हमारी मर्जी है, जनाजे पे जाए ना जाए हमारी मर्जी है, दुआ करे ना करे हमारी मर्जी है। फिर तो यही वाली जोर वाली बात है। मैंने काफी सारे ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने अपने वालिदैन की खिलाफ वर्दी की है, इस्लाम को। सर उमैरा असगर को देख लें, ओहो क्या नाम, उमैरा असगर है ना। मैं एक और भी हमारी एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है पाकिस्तान की, आपको पता है बैरिया टाउन के अंदर वो अपार्टमेंट में रहती थी, उनके बच्चे बाहर थे। जब वो फौत हुई हैं, उनके पास उनके बच्चों को भी नहीं पता था। काम वाली ने बताया बैरिया की मैनेजमेंट को, फिर उसके बाद बैरिया का जो स्टाफ है 500-500 हज़ार रुपए उन्होंने डाले और जाके उसके लिए कफन खरीदा है, उसकी जनाजे का बंदोबस्त किया और बैरिया के स्टाफ ने खुद जाके उनको दफनाया और बैरिया के कब्रिस्तान में दफनाया। और पैसे उसके पास तकरीबन 15-16 करोड़ रुपए उसके अकाउंट में पड़ा हुआ था उस औरत के। उसके बच्चे उसको दफनाने नहीं है, बच्चे फिर बाद में आए हैं, आके फिर उन्होंने वो पैसे भी लिए, जो भी उनके मामला है। अपार्टमेंट भी उनका अपना अपार्टमेंट था जिसमें बहुत हुई है सर। फिर हैंड पेन औरतों के साथ ये होता है। मुझे ये बताएं कि टिकटॉक लाइव में जो शेयर्स होते हैं, ठीक है, आपको कुछ आइडिया होगा इसके बारे में, ये एक शेयर पड़ जाए तो उसमें कितने पैसे आते हैं? देखें बात ये कि ये एक जो शेयर है ना, तकरीबन ये 300 कुछ डॉलर्स का आपको पड़ता है। अच्छा। आप खरीदते हैं, हाँ सिंपल सी बात है जी, आपका 30 से 40 हज़ार रुपये आता है और आपका जो तकरीबन चला जाता है जी तकरीबन 1.5 लाख से कम 31-35 का आपको पड़ता है। बाकी सारा टिकटॉक ले जाता है पैसे। अच्छा, आपको 40,000 रुपए बचते हैं? 40,000 रुपये नहीं, चले एक मिसाल के तौर पर आप जो है वो एक पर्सनैलिटी हैं, एक जो है वो आपका एक अपना एक इमेज है पाकिस्तान में, मतलब आप मशहूर हैं, तो आपको तो चलो वो लोग शेयर मार रहे हैं। जो लोग शेयर मार रहे हैं उनको क्या फायदा है? जो मार रहे हैं उनके जो आईडी है उसका लेवल 2-3 वजह से मारते हैं। एक तो उनकी आईडी का लेवल अप होता है, इसमें 50 लेवल्स तक है। जितना लेवल अप होगा उतना ऊपर लिखा हुआ आता है आपकी आईडी पे जी। फर्ज करें आपका लेवल 10 है, आप अगले को कोई रिक्वेस्ट भेजते हो, लिखा आता है जी ये 10 लेवल का, ये इसके हो चुके हैं, मतलब इसने इतनी गिफ्टिंग की है। दूसरा लड़के मारते हैं लड़कियों के लिए, सीधी सी जो बात है, फिर लड़कियों बोलते हैं जी हमसे मुलाकातें करो। सर हलाल का माल कोई भी नहीं मारता, ये सारा आराम का ही पैसा होता है जो आराम के टाए चढ़ जाता है। हलाल पैसे से कोई बंदा भी गिफ्टिंग नहीं करेगा। हलाल के पैसे से बंदा जाके मस्जिद में देगा, गरीबों के घर पालेगा, सारी चीजें करेगा, गिफ्टिंग कभी भी नहीं करता, लेवल कभी भी अप नहीं करता। हम लोग क्या लेवल अप करने के चक्कर में पड़े रहते हैं? कभी नहीं पड़े रहते। मेरी 10-11 लेवल है आईडी के, लेकिन वो कौन सा पैसा जो लोगों ने मुझे गिफ्ट किया मैंने फिर आगे गिफ्ट कर दिया, उसकी समझ आती है। लेकिन अपने जेब से टॉपअप करना, इसका मतलब है पीछे जरूर रोला है। फिर इसमें कार्डें शार्डें कुछ लोग यूज़ करते हैं, कुछ मुख्तलिफ चीज़ें। उस्मान साहब ये एक बहुत लंबा चैप्टर है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो लोग
पॉडकास्ट के अंदर बैठकर डिजिटल तवाइफ कह रहे थे या जो भी बातें कर रहे थे, कम से कम गेस्ट को वहां पे रोकना चाहिए नहीं था। किसी को देखो, तवाइफ को भी तवाइफ ना बोले उसके चेहरे के सामने, ठीक है, उसे मना बोलो, किया गया। उसकी सलाह करो, उसे अच्छे तरीके से बन जाओ कि वो आपकी तरफ मुड़े, ना कि वो आपसे मुझे दूर ये हो जाए। बताएं, आखिरी बात ये मुझे ये बताएं कि ये जो वर्दा मलिक की पॉडकास्ट हुई है, हाँ। क्या वो यहाँ से कुछ सीख के गई है या वो इससे भी ज्यादा करना शुरू कर देगी? सर उसने ना यहाँ से कुछ भी नहीं सीखा, क्योंकि जो लाइव के ऊपर जो बैठते हैं ना लोग, इन्होंने बड़ा कुछ सीखा हुआ होता है, पहले इनको बहुत कुछ पता होता है, सारी सारी रात लाइव पे बैठते हैं, हर किस्म के बंदे के साथ मिलते हैं। जब रेहान तारक ने पतलू का पॉडकास्ट किया, पतलू ने आंखों में आंखें डाली, क्यों? क्योंकि वो इस चीज का आदी है। इसी तरह ये यहाँ से ये कुछ नहीं सीख के गए, ये लाइव के ऊपर बैठते हैं, ये लाइव के ऊपर ही चीजें सीखते हैं, और इन लोगों को इस तरफ मोड़ना बहुत ही मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। उस्मान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ज़बरदस्त बातें की, आपने तो लोगों की आंखें खोल के रख दी हैं। आप इस तरह की वीडियोस देखने के लिए पोस्ट पाकिस्तान को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे टिकटॉक आईडी को लाजमी फॉलो कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया, अल्लाह।